Hello students, today we will start the next lesson, lesson number 7. Name of the lesson is the interview and it is written by Christopher Sylvester. So first of all about Christopher Sylvester, was born in 1959. He was a student of history at Peterhouse, Cambridge. He was a reporter for Private Eye for 10 years and he has written features for Vanity Fair. So he has written for Vanity Fair, that was the Private Eye or private publication for which he has worked for 10 years. Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin book of interviews, and this particular chapter that has been included in your syllabus, actually it is the excerpt or the part of a big book. The name of the book is Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to present day. And this particular book, an anthology or the collection of the data or stories that has been collected, that was started in 1859 and till present, when Christopher Sylvester has written this particular essay. So now we'll talk about interview, the title, why the title has been taken interview. So first of all, what is interview? Interview होता क्या है? Interview is communication between two persons. There might be one more than that is more than one, two or three interviewers who can ask question from one interviewee. So you can define interview is the communication between interviewer. You can define that it is the way of communication of interviewee and interviewer. इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वेयर इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस एंड इंटरव्यूई हैव टू गिव आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर इज कॉल्ड इंटरव्यू. नाउ दिस इंटरव्यू माइट बी ऑफ मैनी काइंड्स. A person who wants a job, he might have to give interview. A celebrity, an actor, actress, politicians, or so many other people, they have to also face interview by the journalist. So the main part of the interview are journalists. They belong to the different media. They usually get interview of the different persons time to time. Whenever you see in the news, you can find so many interviews are going on smoothly on different TV channels. Someday there are politicians, someday there are actors, actresses, or other famous persons of the world or of the society. So what is the main thing about this title? Because Christopher Sylvester, he has given in this particular chapter what are the merits and demerits of interviews, and not only merits and demerits or advantage or disadvantage of the interview, he has also included different views by the different people who has given interview till today. कि आज तक जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनकी क्या व्यूज हैं, what are the positive views about interview, or they have negative view about the interview, that has been discussed in this chapter. क्या क्या पॉजिटिव व्यूज़ हैं, क्या क्या नेगेटिव व्यूज़ हैं इंटरव्यू के बारे में, they have been discussed in this chapter. And not only a single but many famous writers has been discussed. They had given their opinion about interview, that how difficult is it for an interviewee. इंटरव्यूवी के लिए कितना डिफ़िकल्ट है, जबकि इंटरव्यूअर है, he is at the supreme position,
is a powerful person who can ask any question. Interviewer can ask any question from the interviewee. वो इंटरव्यूवी से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है एंड इंटरव्यूअर इज एक्चुअली इन डिफिकल्ट पोजीशन एंड ही हैज़ टू गिव ऑल आंसर्स आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर के द्वारा जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यूवी को वो सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर देने पड़ते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट व्यूज दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर in this chapter. So what he has here discussed that has been given. So first of all he is giving positive views about interview and he is telling about what an interview and how it become famous. He is telling since its invention, it means when interview was invented, interview कब invent हुआ, कब उसका आविष्कार हुआ, कब इसकी स्टार्ट हुई, that was a little over 130 years ago. आज से हम ये कहेंगे if we talk about today it will be 150 years, more than 150 years, but because in 90s he has written this particular article, so you can say at that time they were more than 130 years ago he has given invention of interview का जो invention है 130 years ago हुआ. So you can also mention 130 years because it has been given in the book, so no problem about that. The interview has become a common place of journalism. कि जब से 130 ईयर्स पहले जब से इंटरव्यू है वो स्टार्ट हुआ तभी से ये एक कॉमन प्लेस हो गया है, ऑर्डिनरी प्लेस हो गया है ऑफ जर्नलिज्म का. स्पेशली जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट हैं वो नॉर्मली क्या है इंटरव्यू लेते रहते हैं डिफरेंट पीपल के, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के. सो फॉर देम इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. टुडे ऑलमोस्ट एवरी डे हु इज़ लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू. कि आज के दिन जितने भी लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, दे विल हैव रेड एन इंटरव्यू. कि उन्होंने ज़रूर ही क्या है इंटरव्यू को पढ़ा होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स. कि कभी न कभी अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने ज़रूर ही इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स. इतने सालों में 130 ईयर्स के अंदर पता नहीं कितने ही हज़ारों सेलिब्रिटीज़ ने क्या है इंटरव्यू ज़रूर ही दिया होगा. एंड सम ऑफ देम रिपीटेडली. कि कुछ लोग ऐसे हैं उनमें से जिन्होंने रिपीटेडली इस इंटरव्यू को दिया है. सो हु आर दे आर सेलिब्रिटीज़ बिकॉज सेलिब्रिटीज़ हैव टू ऑल्सो गिव इंटरव्यू अगेन एंड अगेन. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू of its functions, methods and merits varied considerably. So it is hardly surprising. इसलिए ये बात सरप्राइज करने के अंदर काफ़ी हार्ड है that opinions of the interview, कि जो इंटरव्यू के जो ओपिनियंस हैं of its functions या फिर इसके फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, they vary considerably, they differ in a considerable way, in a thoughtful way. कि निश्चित तौर पे इसमें सरप्राइज़ करने वाली कोई बात ही नहीं है कि जो डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके फंक्शन के बारे में, मेरिट के बारे में, डिसमेरिट के बारे में, वो ज़रूर ही डिफरेंट पीपल के डिफरेंट होंगे. दे हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट इंटरव्यू. सो दोज हु हैव बीन इंटरव्यूड थ्रू द ईयर्स एंड some of also them repeatedly interviewed, they have different ideas about interviews. So some might have positive and some might have negative ideas. So the first he is talking about, Sylvester is talking about the positive ideas. He is saying some might make quite extravagant claims, कि कुछ लोग extravagant claim कर सकते हैं. extravagant that is overstating, बढ़ा चढ़ा करके claim कर सकते हैं. for it as being in its highest form a source of truth. कि जो पॉजिटिव बता रहे हैं इंटरव्यू को कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छी चीज़ है, दे कैन से इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म इट इज़ ए सोर्स ऑफ ट्रुथ. कि इंटरव्यू जो है वो अपनी हाईएस्ट फॉर्म के अंदर कि अच्छे प्रकार से जब इंटरव्यू लिया जाता है किसी का, तो ये एक उस प्रकार से सोर्स ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई का स्रोत है, ये सच्चाई के बारे में बताता है. एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और अगर इसको प्रैक्टिस के अंदर लाया जाए, इट इज़ एन आर्ट. जिसको प्रैक्टिस हो जाती है, जिसको हैबिट हो जाती है, जैसे जर्नलिस्ट हैं, एज एन इंटरव्यू दे बिकम हैबिचुअल एंड दे हैव ऑल्सो ए प्रैक्टिस एंड दैट इज़ बिकम देयर आर्ट. कि उनकी आर्ट बन जाती है, वो कला के रूप में इसको लेते हैं. इन द सेम वे दोज हु आर इंटरव्यूवी, जो इंटरव्यूवी हैं, जो लोग लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं, इफ़ दे आर ऑल्सो गिविंग इंटरव्यू रिपीटेडली, दैट इज़ ऑल्सो आर्ट फॉर देम एंड दे कैन give interview at any time. Others
यूजुअली सेलिब्रिटीज़। जो दूसरे हैं, नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका इंटरव्यू का, उसके बारे में टॉक करा कि कौन कौन ऐसे हैं। सो द अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज विक्टिम्स, जो अपने आप को इसका विक्टिम मानते हैं, शिकार मानते हैं कि हम इंटरव्यू का विक्टिम बन गए हैं। माइट डिस्पाइस, शायद वो डिस्पाइस हो जाते हैं, नाराज़ होता है, डिसलाइक करते हैं इंटरव्यू को। सो डिस्पाइस मीन्स डिसलाइक और कॉन्टेम्प्ट, घृणा करते हैं इंटरव्यू से, द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूशन इनटू देयर लाइव्स। तो वो ये मानते हैं कि ये जो इंटरव्यू है वो अनवारंटेड है, बिना वारंट के, जैसे कोई लीगल वारंट नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आना चाहिए। सो इट इज़ अनवारंटेड इंट्रूशन और एंट्री विद फोर्स, कि ज़बरदस्ती जैसे उनकी लाइफ के अंदर आ गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती पत्रकार उनके पीछे पड़ जाते हैं, या फिर और कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं इन विच दे विल हैव टू फेस इंटरव्यूज़। So those who are despising or those who are not thinking that a interview is good, they will have to face interview as unwarranted intrusion. So जो नेगेटिव सोचते हैं वो सोचते हैं कि हम इंटरव्यू का विक्टिम हो गए हैं, शिकार हो गए हैं, वो एक प्रकार से अनवांटेड इंट्रूशन कहते हैं। सेकंड बताया गया है और फील दैट इट सम हाउ डिमिन्सेस देम। वो ये भी फील करते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, कि ये इंटरव्यू है वो उनको किसी प्रकार से डिमिन्स कर देता है, मतलब मेक लेस, उनका कहीं ना कहीं उनको कम कर देता है। जैसे वो ये मानते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी है वो किसी प्रकार से इससे डाउन हो गई है। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट, जस्ट एज ऑल्सो दे आर कंपेयरिंग कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे कम हो जाती है, जैसे कि जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव्ड दैट, क्योंकि कुछ जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, जो एंशियंट कल्चर्स हैं, प्राचीन संस्कृति है, उसमें ऐसा बिलीव किया गया है, ऐसा माना गया है दैट इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सनस सोल। कि अगर मान लीजिए कोई किसी भी आदमी की फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले रहा है, उसकी एक पोर्ट्रेट बना रहा है, उसकी एक पिक्चर बना रहा है, इट मीन्स देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सनस सोल, कि वो उसकी एक पर्सन की क्या है, सोल, उसकी आत्मा चुरा रहा है। अगर कोई किसी की पिक्चर भी बना रहा है तो इसका मतलब इंटरव्यू लेना तो बहुत दूर की बात है, यदि उसकी पिक्चर पोर्ट्रेटिक पिक्चर भी बना रहा है तो इसका मतलब उसकी आत्मा है, उस जो पेंटर है उसने उसकी आत्मा को चुरा लिया। दैट इज़ बिलीव्ड इन प्रिमिटिव कल्चर। सो समटाइम इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड व्हाट इज़ बिलीव्ड इन प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट द इंटरव्यू और अबाउट मेकिंग ए पिक्चर। सो जो लोग विक्टिम हैं वो इस प्रकार की बातें भी सोचते हैं कि प्रिमिटिव कल्चर के अंदर ऐसे हैं, उसके साथ भी वो कंपेयर करते हैं, अपने आप को ये भी मानते हैं कि वो डिमिन्स हो गया या अनवारंटेड इंट्रूशन। सो यू मस्ट लर्न अबाउट दिस एंड यू मस्ट रिमेंबर देम। नेक्स्ट, वन बाय वन नाउ सिल्वेस्टर इज टॉकिंग अबाउट सम फेमस सेलिब्रिटीज़। कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ के बारे में वो बात कर रहा है कि ये जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्या सोचते हैं। जैसे फर्स्ट नाम दिया है उसने वी.एस. नेपोल का, ये क्या सोचता है इंटरव्यू के बारे में। ही फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज़। ये फील करता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो इंटरव्यू के बारे से वाउंड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्स। और अगर उनका इंटरव्यू लिया जाता है इन दैट वे दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्स, अपना एक पार्ट वो खो देते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया जो प्रिमिटिव कल्चर के अंदर क्या है, दे लूज देयर सोल। सो द फर्स्ट वी.एस. नेपोल आप याद रखेंगे कि ये कहता है कि वाउंड हो जाते हैं इंटरव्यू से। सेकंड है लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। ये भी याद रखेंगे कि ये इसने एक बुक लिखी है एलिस इन वंडरलैंड, इसका ये क्रिएटर है। वॉज सेड टू हैव, उसको ये कहते हुए सुना गया, हैड ए जस्ट ऑरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि उसको हमेशा इंटरव्यूअर का डर लगता था। जो इंटरव्यू लेने वाला है इंटरव्यूअर, उसको हमेशा डर लगता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उसने कभी भी कंसेंट नहीं दी, अपनी एग्रीमेंट नहीं दिया, कभी भी वो एग्री नहीं हुआ किसके लिए, इंटरव्यू देने के लिए। इट वॉज हिज ऑरर, कि ये उसका डर ही था, ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। उसको ये डर था कि कहीं वो लायनाइज्ड ना हो जाए। लायनाइज्ड मीन्स फेमस, कि कहीं वो फेमस ना हो जाए। कहीं अगर इंटरव्यू उसका लिया गया और उसने अच्छे से बातें बताई तो क्या होगा, ही माइट बिकम फेमस, which made him thus repel would be acquaintances, interviewers and the persistent petitioner for his autograph। और इससे वो क्या होगा कि वो रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। रिपेल मीन्स टू गो अवे। वुड बी acquaintance, अपने acquaintance से, अपने परिचितों से, इंटरव्यूअर से, और जो persistent मीन्स stubborn, जो जिद्दी, जो बार बार कोई आपके पीछे पड़ता है। पेटिशनर्स रिक्वेस्ट करने वाले।
तो जो परसिस्टेंट पेटिशनर्स हैं, रिक्वेस्ट करने वाले फॉर हिज ऑटोग्राफ कि आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए, इनसे वो क्या है रिपेल करेगा, उनसे दूर भागने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो लोग दिखाई देंगे उनसे दूर भागेगा। इसीलिए वो क्या है फेमस नहीं होना चाहता, इसीलिए वो इंटरव्यू नहीं देना चाहता। दैट्स वाई ही हैज़ अ फियर ऑफ द इंटरव्यूअर। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, अगर ऐसा हुआ कि वो लोग सभी उसके पीछे जाएंगे, आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, उसको क्या करना पड़ेगा उसके बाद अपनी सफलता की स्टोरी है वो उनको बताने पड़ेंगे। इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, इन सभी लोगों को साइलेंस करने के लिए विद मच सेटिस्फिकेशन एंड अम्यूजमेंट, और वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन और अम्यूजमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ, कि उनको सेटिस्फाई भी करना है और उनको थोड़ा सा उनका मनोरंजन भी करना है। सो बिकॉज ही हैज़ टू फेस सो मैनी पीपल if he become famous by the interview, and that's why he is not going to face, he was not consent or agreed to give interview, इसीलिए उसने इंटरव्यू नहीं दिया। सो दो हो गए, वन इज दैट इज लेविस कैरोल एंड द सेकंड वन इज द फर्स्ट वन वी.एस. नैपोल। वी.एस. नैपोल हो गया, लेविस कैरोल हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रुडयार्ड किपलिंग। थर्ड वन इज रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग भी एक फेमस पर्सन है। सो ही एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडिमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, उसने और भी ज़्यादा कंडिमेंट्री रिलेटेड टू क्रिटिसाइजिंग, और भी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला, निंदा करने वाला एटीट्यूड दिखाया इंटरव्यू के प्रति। हिज वाइफ कैरोलिन, उसकी वाइफ जिसका नाम कैरोलिन था, सी राइट्स इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में लिखा है फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 की डेट के अंदर, दैट देयर डे वॉज रेक्ड बाई 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि उनका जो दिन है दैट वाज रेक्ड और डिस्ट्रॉयड, उनका दिन बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया 2 रिपोर्टर्स के द्वारा जो कि बोस्टन से बिलोंग करते थे। सी रिपोर्ट्स और हस्बैंड एज सेइंग, उसने ये रिपोर्ट किया अपनी डायरी में कि उसका हस्बैंड ये कह रहा था टू द रिपोर्टर्स को, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि मैं रिफ्यूज़ क्यों करता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। साथ में उसने आंसर भी लिखा, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है, दैट इज़ नॉट मॉरल, दैट इज़ नॉट लीगल। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज यू कैन से अ मॉरल अटैक, कि उसकी जैसे पर्सनैलिटी है, उसकी जो मॉरल ड्यूटी है उसके ऊपर अटैक करता है। इट इज़ नॉट ए मॉरल थिंग, ये नैतिक नहीं है, अनैतिक है। इट इज़ क्राइम, उसने साथ ऐड किया कि ये एक क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, कि उतना ही क्राइम है जैसे कि कोई ऑफेंस हो, कोई अटैक हो माई पर्सन हियर मीन्स पर्सनैलिटी, कि मेरी पर्सनैलिटी के विरुद्ध जैसे कोई अटैक कर रहा है, कोई उसके ऊपर कोई असाल्ट कर रहा है, एज एन असाल्ट, जैसे कि एक असाल्ट है, असाल्ट मीन्स अटैक, ऑफेंस कोई विरोध करना होता है। तो जैसे उसका कोई विरोध कर रहा हो, जैसे उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा हो, उस प्रकार से, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, जैसे कि कोई मेरिट्स पनिशमेंट दे रहा हो, उसको दंड दे रहा हो, उसको फिजिकली पनिश कर रहा हो, उसके ऊपर अटैक कर रहा हो। तो फर्स्ट हमने वी.एस. नैपोल पढ़ा जो कि वाउंडेड बता रहा है कि लोगों घायल हो जाते हैं इंटरव्यू से। सेकंड हमने लेविस कैरोल पढ़ा, लेविस कैरोल ये कह रहा है कि वो ज़्यादा फेमस हो जाएगा और लोग उसके पास आएंगे और उसको उनको क्या है सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वो कितना सफल क्यों हुआ। और थर्ड है दैट इज़ दिस पर्सन नेम्ड एज रुडयार्ड किपलिंग, और रुडयार्ड किपलिंग ये कह रहा है कि वट दैट इट इज़ इमोरल, कि इमोरल है, क्राइम है, एक प्रकार का अटैक है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट। इट इज़ कॉवर्डली एंड वाइल्ड, वो ये भी कह रहा है कि ये कॉवर्डली है, मतलब कायरता है कि इंटरव्यू देना, एंड ऑल्सो वाइल्ड, और ये वाइल्ड भी है, वाइल्ड मीन्स अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, और भी ऐड कर रहा है कि कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी है वो इसके लिए कभी नहीं हाँ भरेगा, मच लेस गिव इट, बल्कि इसको छोड़ देगा। येट किपलिंग ने इतनी बातें कही इंटरव्यू के विरुद्ध, लेकिन फिर उसके बावजूद भी किपलिंग ने क्या किया, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on मार्क ट्वाइन only a few years before, कि कुछ साल पहले ही खुद किपलिंग ने ही एक ऐसा असल्ट, एक ऐसा आक्रमण है, उसके लिए वो क्या है perpetrated मीन्स गेट रेडी फॉर ए क्राइम, कि जैसे उसने ऐसा एक क्राइम है उसके लिए वो तैयार हो गया एक ऐसा आक्रमण करने के लिए मार्क ट्वाइन के ऊपर। इट मीन्स ही हैड ऑल्सो टेकन एन इंटरव्यू ऑफ मार्क ट्वाइन, कि उसने मार्क ट्वाइन का इंटरव्यू लिया, उसके लिए वो गेट रेडी हो गया, उसके लिए ऐसा उसने क्राइम कमिट किया, एक आक्रमण उसने मार्क ट्वाइन के ऊपर किया। हालांकि खुद कह रहा है कि ये एक प्रकार से इमोरल है, लेकिन ऐसा ही अटैक, ऐसा ही असाल्ट उसने मार्क ट्वाइन के ऊपर किया है। अब नेक्स्ट है H.G. वेल्स, दैट मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर्ड। फोर्थ वन
H.G. Wells in an interview in 1984, H.G. Wells ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा, जो कि 1984 के अंदर उसने दिया, रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, उसने इंटरव्यूइंग को ऑर्डिल बताया है. ऑर्डिल मीन्स द पेन और सफरिंग, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन आंट जेनिफर टाइगर कि ऑर्डिल्स हैं वो एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है, पेनफुल एक्सपीरियंस होता है. तो इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो वो दैट इज़ अ हार्ड और डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस. तो उसने उसको डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस बताया. बट वॉज ए फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू भी था, मतलब लगातार इंटरव्यू देता रहता था. हालांकि इसको ये भी कह रहा है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो हमेशा इंटरव्यू देता रहता था. एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और 40 years के बाद इसने खुद इंटरव्यू लिया किसका, जोसेफ स्टालिन का. व्हाट डज इट मीन? इट ओनली मीन्स कि इवन दोज हु आर गिविंग इंटरव्यू, जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे इंटरव्यूई के रूप में, हालांकि वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं. फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई है, वो खुद भी इंटरव्यू ले रहे हैं. इट मीन्स it is not only that they are only thinking about negative, they are also having positive about this, कि कुछ वो पॉजिटिव भी है इसके बारे में. that's also the case. now the fifth one, शॉल बेलो, who has consented to be interviewed, जो कि इंटरव्यू देने के लिए क्या है, कंसेंट दिया उसने, एग्री तो हो गया. he was agreed to be interviewed once on several occasions, एक बार ही नहीं, काफ़ी बार, several occasions के ऊपर. Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe, लेकिन nevertheless once described कि वो कभी भी एक बार उसने ये डिस्क्राइब किए बिना भी नहीं रह इसका इंटरव्यूज़ एज बिंग लाइक thumbprints ऑन हिज विंड पाइप, कि जैसे उसकी विंड पाइप है, ये उसकी सांस की नली है, और किसी ने इसके ऊपर क्या है, थंब प्रिंट्स रख दिया. स्पोकेशन, ही वॉज फीलिंग अ टाइप ऑफ स्पोकेशन, जैसे उसका दम घुट रहा था, ही वॉज फीलिंग लाइक दैट. So 5 main persons who have given their statement or opinion against interview, and the first one is V.S. Naipaul. V.S. Naipaul ने बताया इंजरी के बारे में, वाउंडेड होने के बारे में, और V.S. Naipaul है. सेकंड है लेविस कारोल. लेविस कारोल ने बताया कि किस प्रकार से फेमस हो जाएगा तो उसको किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी. थर्ड वन इज़ रुडियार्ड किपलिंग. रुडियार्ड किपलिंग क्या मानता है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट बट दैट इट इज़ इमोरल अटैक, कि एक प्रकार से अटैक है, इमोरल है. नेक्स्ट वन इज़ हियर H.G. वेल्स. अगला H.G. वेल्स है. फोर्थ H.G. वेल्स है, जो कि ऑर्डिल मानता है, एक पेनफुल एक्सपीरियंस मानता है. एंड द लास्ट वन इज़ शॉल बेलो. और शॉल बेलो क्या कहता है, इट इज़ थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, जैसे आपको स्पोकेट किया गया, कर दिया गया हो. अब कुछ पॉजिटिव्स बता रहा है राइटर यहाँ पर. येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, कहता है कि हालांकि जितने भी ड्रॉबैक्स ये बताए गए हैं, डिफरेंट ओपिनियंस बाय द डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, सो even after despite these drawbacks, it is supremely serviceable medium of communication, कि ये सुप्रीम है, सर्वोच्च सर्विस के लायक सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का. अगर कम्युनिकेशन करना है किसी से और उससे कुछ हमें ट्रुथ प्राप्त करनी है, सो इट इज़ द सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम, कि ये सबसे अच्छा मीडियम है टू कम्युनिकेट. अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, उसके बारे में जानना है, सो इंटरव्यू इज़ द बेस्ट वे to get the truth. Next he is saying these days more than at any other time, कि आजकल क्या होता है, किसी भी दूसरे टाइम से our most vivid impression, कि हमारे जो सबसे ज़्यादा विविड है, दैट यू कैन से ग्राफिकल, दर्शात्मक जो इम्प्रेशन है ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, के जो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, कंटेम्प्रेरीज हैविंग सेम टाइम, जो हमारे समकालीन जितने भी एक्टर्स हैं, एक्टर हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस पर्सनस हैं, उनसे अगर हमें कोई उनकी विविड इम्प्रेशंस लेने हैं, दे आर थ्रू इंटरव्यू. तो वो कहाँ से आएंगे, इंटरव्यूज से आएंगे, अगर हमें उनके बारे में जानना है. डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन अ पॉजिटिव, के बारे में भी एक आदमी का नाम आया है, एंड ही इज़ डेनिस ब्रेन. ही हैज़ रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू द वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, कि हर मोमेंट की हर चीज़ हमारे पास पहुँच जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू एंड विद द हेल्प ऑफ मीडिया, थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर. जब एक आदमी दूसरे से क्वेश्चन कर रहा है, इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यू से क्वेश्चन कर रहा है, इन दैट वे ही इज़ गिविंग एवरीथिंग टू अस, हमारे पास वो हर चीज़ पहुंच जाती है. बिकॉज ऑफ दिस
इंटरव्यूअर, और इसी कारण जो इंटरव्यूअर है उसकी पोजीशन है वो सबसे ऊपर है, होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। वो एक ऐसी पोजीशन रखता है दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। व्हाट डज इट मीन? दैट कांट बी फॉलोड, दैट कांट बी हार्ड, मतलब एक ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर कोई पहले पहुंचा ही ना हो, ऐसी पोजीशन। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड यूनिक और अद्वितीय, कि इंटरव्यूअर की जो पोजीशन है वो ऐसी है जिसको कोई जीत ही नहीं पाता, जिस अद्वितीय है, और वो कुछ भी क्वेश्चन है वो इंटरव्यूअर से कर सकता है। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ एवरी मोमेंट रीचेज थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द अदर। हर चीज़ है वो पूछी जा सकती है। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस। विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट।